Good morning students, welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your science teacher. Students, how are you? I hope you all are fine at your places and you are studying well, you are revising your chapters. So students, today we are going to revise chapter 5 of your science, that is the fundamental unit of life. Children, you have already studied this chapter, we have provided you the video. I hope you have seen it. But now we are going to revise this, we are going to understand the important points of this chapter through this video. So students, before we start revising the chapter, please open your book so that you can mark the important lines, diagrams and internal questions. So please open chapter 5, the fundamental unit of life, and the page number is page number 57. So, as children, you have already understood about the cell, that the cell is the fundamental unit of life. That is, we have seen that all the organisms are made up of cells. So, what are the living organisms made up of? So, we know that all the living organisms are made up of cell, which is the structural and functional unit of life. But why do we call it as structural and functional unit of life? Because as we see, the body of the organism, whether it is one cell, unicellular or multicellular, all they are made up of cell only, and all the functions are also performed by the cell. If an organism is single cell, so all the life processes, nutrition, respiration, locomotion, excretion, all the functions are inside the cell only. सारे जो life processes है वो एक single cell भी कर लेगा. और अगर multicellular organism है, then also the cell perform their function. Now we will first discuss the discoveries related to it. This is also important. You can refer to page number 58, where the discoveries are given in your book. The yellow box is there, more to know में यहाँ पे discoveries दी हुई है page number 58 पर. You can go through it and you can see that first of all Robert Hooke discovered a dead cell in Cork, आपने पढ़ा ही है, in 1665. Then एक living cell discover किया Leeuwenhoek ने 1674 में, ठीक है. Then nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. So these are the discoveries related to the cell. फिर हम बात करते हैं cell theory की. Cell theory is also very important, which was given by Schleiden and Schwann. Plant cell और animal cell दोनों में इन्होंने cell theory को describe किया, and they gave the postulates of the cell theory, that all the organisms are made up of cells and new cells arise from pre-existing cells. Also, Virchow also added some postulates into this cell theory. Then now we will discuss what is cell made up of. That means cell किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. What are the components of the cell और cells के components क्या हैं. आप देखेंगे पेज नंबर 59 पर, है ना, 58 and 59. So as we know that जितने भी different organisms हैं, सब में अलग अलग तरह के different shapes and sizes of cells are present. कभी हमारी बॉडी में जैसे nerve cell है, उसका shape अलग है, ओवम है, उसका शेप अलग है, या मसल सेल्स हैं, तो ऑल द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस. नाउ विल सी, चाहे कोई सा भी सेल हो, कैसा भी सेल हो, दे हैव मेन 3 कंपोनेंट्स, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एंड न्यूक्लियस इज ऑलवेज देयर टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, and the cytoplasm which contain cell organelles. So let us discuss in short all these 3 components. तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ना. अबाउट इट गिवन ऑन पेज नंबर 59 पे आपके इसके बारे में दिया हुआ है, आप रेफर कर लीजिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमेएबल. नाउ यू शुड रिमेंबर, आपको पता भी होगा सेमी परमेएबल का मतलब होता है कि इट अलाउज सम ऑफ द मटीरियल टू पास थ्रू इट, एंटर भी करने देगा एंड एग्जिट भी करने देगा. तो इट अलाउज सम ऑफ द मटीरियल टू एंटर और एग्जिट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. Then one process is also given, diffusion. Diffusion क्या होता है? Movement of molecules, चाहे वो water molecules हों या gases हों, mainly जैसे carbon dioxide and oxygen, these gases diffuse into and out of the cell through diffusion. तो ये कैसे होता है? Through concentration gradient, means the gases move from their high concentration to low concentration.
तो सेल्स में इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। देन ऑस्मोसिस ऑल्सो देयर, दैट मीन्स ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एंड फॉर ऑस्मोसिस बीच में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है, दैट इज ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होता है। और यहाँ पे लेकिन मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्मोसिस। आपकी बुक में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में भी दिया है, जस्ट गो थ्रू इट। हाइपोटोनिक मीन्स जहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो द वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर हमने कोई सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो सेल क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा, मतलब वाटर विल मूव इनटू इट। अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, मीन्स उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, सेल के जो वाटर कंटेंट है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे एंड सेल विल बिकम फ्लैसिड। सेल में एयर वाटर की कमी आ जाएगी और वो श्रिंक हो जाएगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेम कंसंट्रेशन है, तो है ना, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन भी है कॉपी वर्क में, तो विल डिस्कस देयर। अब आता है सेल वॉल। सेल वॉल इज द ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है या बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, एक फिक्स मतलब सपोर्टिंग भी है। ऑल्सो ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये इनकी सेल की साइज और शेप बनी रहती है। और इसीलिए सेल वॉल की वजह से ही जब हम किसी प्लांट सेल को वाटर में रख देते हैं तो वो बर्स्ट नहीं होता है ना, इट डज नॉट बर्स्ट बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ ज़्यादा मतलब फोर्स नहीं लगाने देता है, वो दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट करते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एज यू हैव सीन, अभी आप एक प्लांट सेल या एनिमल सेल का डायग्राम देख सकते हो बुक में, तो इसमें आपको न्यूक्लियस जनरली सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर है एंड विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, है ना। एक तो ये मेन काम है, बॉस ऑफ द सेल है, ये कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज एंड मेनली इसका फंक्शन कब होता है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे जब सेल डिवीजन के बारे में हायर क्लासेस में, तो सेल डिवीजन के टाइम भी न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन किस तरह से कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करना है, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये इसके फंक्शन हुए। स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें कुछ पोर्स होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। एंड इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो देयर, और जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोमल या क्रोमेटिन थ्रेड या नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, अब न्यूक्लियस के प्रेजेंस के हिसाब से या किस टाइप से न्यूक्लियर मटेरियल सेल में लोकेटेड है, on the basis of that we can divide the cell into two kinds like prokaryotic cell and eukaryotic cells। तो prokaryotic cells में न्यूक्लियस प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, जो जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेल में स्प्रेड आउट हो रहा है ना। आप देख सकते हो पेज नंबर 62 पे फिगर गिवन है एक आपको प्रोकैरियोटिक सेल का, दैट इज फिगर 5.4। तो दैट डायग्राम विल टेल यू हाउ जेनेटिक मटेरियल या हाउ न्यूक्लियर मटेरियल इज स्प्रेड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। तो अभी तो हम यही बात करेंगे कि न्यूक्लियस प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर इन प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसको हम प्रॉपर न्यूक्लियस ही कहेंगे, और उसमें मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल को एक जगह कन्फाइन करके रखती है। दैट मीन्स उसका न्यूक्लियर का जो मटेरियल है वो इधर उधर स्प्रेड नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सारा पार्ट है वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। इन योर बुक it is given on page number 62 about cytoplasm. That means all the cell organelles are located inside it, and it maintains the shape of the, it contains all the cell organelles.
नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, ये देख लेते हैं हम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, ये हमने जो लिखे हैं सारे सेल ऑर्गेनेलीज, दे आर कॉमन, मतलब ये दोनों के हिसाब से लिखे हुए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में ये प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स नहीं होंगे। अगर वैक्यूल होंगे भी तो वेरी स्मॉल, जैसे कि अमीबा में बहुत स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम को आपकी बुक में भी गिवन है, तो जैसे हम बात करें, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली। जैसे वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसमें कि न्यूक्लियस को हमने डिस्कस किया था। द अदर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज कि जो ये आपको सेल ऑर्गेनेलीज दिख रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे ही गोल्गी एपरेटस की मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगी। तो दिस इज वन मोर डिफरेंस। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस के पास लोकेटेड है, ये ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम की प्रेजेंस के हिसाब से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, मीन्स एब्सेंट है, तो इट विल बी कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये RER जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का मेन फंक्शन करेगा, और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली लिपिड्स एंड फैट्स बनाता है। ओके, तो ये अपना, अब ये इसका फंक्शन क्या होगा, ये न्यूक्लियस के पास ही लोकेटेड है, तो ये न्यूक्लियस में से मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करने के लिए, या फिर साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है वो अगर न्यूक्लियस तक पहुंचाना है तो उसमें ये फंक्शन अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस, ये देखिए ये भी ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसमें सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। इसके जो ऐसे पिंचिंग ऑफ गोल्गी एपरेटस से ये लाइसोसोम्स भी बनते हैं। तो मेनली द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस इज पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द मटेरियल फ्रॉम सेल, फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। सेल में ही एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स पहुंचाने का काम करता है ना। ये आपके पेज नंबर 62 पे गिवन है, सॉरी 62 नहीं 64 पे, अबाउट गोल्गी एपरेटस। ओके, सो गो थ्रू इट। The next is cell organelle is lysosome। ये देखिए लाइसोसोम बहुत ही स्मॉल और राउंडेड स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसोसोम कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये कुछ भी जो फॉरेन सब्सटेंसेज हैं या जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनको डाइजेस्ट करता है, उनको ब्रेक डाउन कर देता है। बट समटाइम्स अगर सेल में कुछ खराबी आ जाती है तो इट बर्स्ट इटसेल्फ, अपने आप बर्स्ट हो जाता है और पूरे सेल को भी फिनिश कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों है, बिकॉज इसमें एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी कैसे जनरेट होती है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन कंबाइन होता है यहाँ पे ग्लूकोज से ना, पायरुविक एसिड, एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अनदर इज प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स मेनली किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में। यहाँ देखिए प्लांट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल है, इसकी वजह से ये न्यूक्लियस थोड़ा साइड में चला गया है, अदरवाइज एनिमल सेल में तो न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है। तो यहाँ पे प्लास्टिड्स के क्या फंक्शन है, प्लास्टिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं सेल को या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को कलर प्रोवाइड करने के लिए। जैसे ग्रीन प्लास्टिड है तो वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और कलरफुल प्लास्टिड्स हैं विच प्रोवाइड कलर टू, जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के कलर्स होते हैं या फ्लावर के कलर्स होते हैं, तो उसके लिए क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन कलर्ड, क्रोमोप्लास्ट इज वेरियसली कलर्ड, एंड कलरलेस प्लास्टिड होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये तीन तरह के प्लास्टिड्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। और हमारा नेक्स्ट है वैक्यूल। तो वैक्यूल का प्लांट सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें सेल सैप भी प्रेजेंट होता है विच प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल,
एंड ऑल्सो इट कंटेन्स सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज लाइक अमीनो एसिड, शुगर, ये सारे भी इसमें स्टोर होते हैं. ओके, तो ये सारे थे हमारे सेल ऑर्गेनेलीज. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इंटरनल क्वेश्चन. तो आप अपनी बुक और पेंसिल ले लीजिए एंड वी विल mark the and we'll write down the internal questions. So just see question number 1, it is given on page number 58. So write down question number 1 on page number 58. आपके बुक में येलो बॉक्स है जिसमें मोर टू नो लिखा है ना, आप यहाँ देख सकते हैं मोर टू नो. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल. तो ऑन पेज नंबर 58 द आंसर इज ऑल्सो गिवन रॉबर्ट ब्राउन. तो यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन एंड मार्क द आंसर. Second question, who proposed the term protoplasm? This question is also on the same page and in the same paragraph. वही more to know में आपको मिल जाएगा ये question भी, and you can mark the answer Purkinje in 1839. So the term protoplasm was proposed by Purkinje in 1839. ना, on the same page number 58. Now come to page number 62 for the next question. That is what is cytoplasm. तो what is cytoplasm? आप पेज नंबर 62 पे आइए. जो आपका राइट साइड का कॉलम में देखेंगे जहाँ पे टॉपिक गिवन है 5.2.4 जिसमें साइटोप्लाज्म टॉपिक गिवन है. ठीक है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ में 6th लाइन है, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यू कैन मार्क द आंसर एंड यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन. What is cytoplasm? Again I am telling you the answer is given in 5.2.4. टॉपिक है साइटोप्लाज्म. इस पैराग्राफ की 6th लाइन पे द आंसर इज गिवन, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन ऑन पेज नंबर 64. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस? तो गोल्गी एपरेटस अभी हमने डिस्कस किया ही था. The function of Golgi apparatus is main function is packaging and dispatching of material. तो आप पेज नंबर 64 पर लास्ट पैराग्राफ देखिए. आई एम रीडिंग आउट द पैराग्राफ, यू मार्क द होल पैराग्राफ. द मटेरियल synthesized near the ER is packaged and dispatched in various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. And the other function are, its function includes storage, modification and packaging of products in vesicles. In some cases, complex sugar may be made from simpler sugars in the Golgi apparatus, and it is also involved in the formation of lysosomes. अभी मैंने आपको बताया ही था, pinching of Golgi apparatus से मतलब ऐसे छोटे-छोटे pinch करके उससे lysosomes बन जाते हैं. Next question, question number 5. You can write this question on page number 65. आपके बुक में राइट साइड का जो कॉलम है इसमें आप देख सकते हैं. On the top of the paragraph only, राइट द कंपोजिशन ऑफ सेल सैप. अभी मैंने आपको बताया ही था कंपोजिशन ऑफ सेल सैप आपको मिलेगा 4th लाइन पे. दीज इंक्लूड एमिनो एसिड्स, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स. तो ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ या कंपोजिशन ऑफ सेल सैप है. वन मोर क्वेश्चन इज इन द सेम पैराग्राफ, सेम पेज, पेज नंबर 65 पे, पर फर्स्ट लाइन है यहाँ पे. वो राइट द फंक्शन ऑफ सेल सैप. तो इट इज गिवन ऑन द फर्स्ट लाइन ओनली. इट प्रोवाइड्स vacuoles. In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. तो ये हुआ cell sap का function. I hope you are getting all the questions and you are able to mark the answers also. So children, this was the internal question. Now we will discuss copy work. I will explain you question and answers. So children, already you must be having this PDF file of the question answers. We will just revise क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, आपने बहुत पहले पढ़ा था ये चैप्टर, है ना. एंड यू शुड रिमेंबर वन थिंग कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जो आपका मिड टर्म का या वट एवर क्वेश्चन पेपर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू, आपके जितने भी टेस्ट होते हैं वो MCQ बेस्ड हो रहे हैं अभी, ऑनलाइन टेस्ट. सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि आप एक एक लाइन पढ़ें. यू शुड गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, एंड बुक को भी आप थॉरोली पढ़िए सो दैट यू कैन आंसर योर क्वेश्चंस प्रॉपरली. Okay, so now let us discuss question number 1, that is make a comparison and write down ways in which plant cells are different from the animal cells. That means you have to just compare plant cells and animal cells. तो अभी हमने डायग्राम में भी मैंने आपको समझाया था, अब आप यहाँ पे देख लीजिए एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स में मेनली क्या डिफरेंसेस हैं.
एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है. प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल. अभी मैंने डिस्कस किए थे प्लास्टिड्स तीनों तरह के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. थर्ड पॉइंट, इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट, या तो होंगे ही नहीं, होंगे तो बहुत स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में. इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर लार्ज एंड दे आर सेंट्रली लोकेटेड एंड प्रोमिनेंट, बिल्कुल आपको बिग वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स नजर आएंगे. फोर्थ पॉइंट, एनिमल सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज कंपैरेटिवली प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज एंड न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर. जैसे कि हमने अभी डायग्राम में भी देखा था, आप यहाँ फिर से देख सकते हो. Nucleus is in the center in the animal cell, whereas nucleus lies at the periphery in the plant cell, है ना. ये plant cell में देखिए साइड में चला गया. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल. अभी मैंने जब आपको न्यूक्लियस समझाया था तब ये डिस्कस किया ही था. अगेन लेट अस रिवाइज इट. तो प्रोकैरियोटिक सेल इज जनरली वेरी स्मॉल इन साइज, दैट इज 1 to 10 micrometer, which is equal to 10 to the power minus 6 meter. So, it is very small, and eukaryotic cells comparatively they are large. Nuclear region, as I told you, poorly defined due to the absence of nuclear membrane. नहीं है nuclear membrane, and the nuclear material जो है या nuclear region है, it is known as nucleoid. In eukaryotic cells, the nucleus is well defined and surrounded by a nuclear membrane. तो nuclear membrane वाला present है. थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड देयर आर मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. फोर्थ पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. एज आई टोल्ड यू, कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज, मेनली जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, एंड ऑल दीज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, what would happen if the plasma membrane ruptures or breaks down. देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. अगर वो रप्चर हो जाती है तो क्या होगा. दैट मीन्स जैसे किसी मकान की दीवार गिर जाए तो क्या होगा, सारा मकान का सामान बाहर या बाहर का सामान मकान के अंदर. तो दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमने समझाया था. कुछ मटेरियल्स को अंदर बाहर आने जाने देता है, पर मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, सारा मटेरियल अंदर बाहर हो जाएगा. तो इट मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल. इफ इट इज रप्चर्ड तो क्या होगा, कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल विल बी लॉस्ट एंड इट विल नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन. तो ये इसके फंक्शन सब डिस्टर्ब हो जाएंगे. क्वेश्चन 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस. तो एज वी हैव डिस्कस्ड ऑल द फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस, तो इसके जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो नहीं हो पाएगा, है ना. इफ द सेल डज नॉट हैव गोल्गी एपरेटस देन देयर वुड नॉट बी एनी लाइसोसोम. अभी हमने देखा था गोल्गी एपरेटस से ही लाइसोसोम्स बन रहा है, तो लाइसोसोम नहीं बनेंगे जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड दे हेल्प इन क्लींजिंग ऑफ द सेल, सेल को क्लीन भी रखते हैं. तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने की प्रॉपर्टी को बायोजेनेसिस कहते हैं, तो ये फंक्शन भी नहीं हो पाएगा. नाउ which organelle is known as power house of the cell. अभी हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी इनसाइड इट विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. और सेल की सारी एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ प्रोवाइड होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसीलिए इसको एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं. So, it is known as mitochondria is known as the powerhouse of the cell because the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria. तो यहाँ पे power generate हो रही है in the form of ATP molecules, adenosine triphosphate. इस form में energy produce होती है. The body uses this energy और जो use जितनी हो जाएगी ठीक है, and it is stored in the form of ATP for मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क. तो पूरी बॉडी या सेल के वर्क के लिए जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड.
तो ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स? अभी हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में लिपिड्स होंगे। So the lipids and proteins get synthesized in endoplasmic reticulum of the cell. Proteins are synthesized in ribosomes of RER, that is rough endoplasmic reticulum, and lipids in smooth endoplasmic reticulum. Next question, how does an amoeba obtain its food? तो अमीबा में कैसे, अमीबा कैसे फूड ऑब्टेन करता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वो अपनी सेल मेम्ब्रेन से ही सारे काम करता है, तो फूड का इनटेक भी सेल मेम्ब्रेन से ही होगा। वो प्रोसेस कहलाता है एंडोसाइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड। ये क्या करता है? एनगल्फ करता है। ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी 5th 6th क्लास में ही हम अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि वो सूडोपोडिया से फूड को एनगल्फ करता है ना। तो अमीबा एनगल्फ्स यानी swallows its food by forming pseudopodia around the food particle. Once surrounded by pseudopodia, the food becomes the part of the cell. वो अंदर चला जाता है and it forms a food vacuole. तो उसके आसपास वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और food is digested and the waste produced by the cell is also removed through that vacuole only. And the method of engulfing the food is called endocytosis. ना, तो इस तरह से amoeba obtain its food. What is next question? What is osmosis? तो अभी हमने डिस्कस भी किया था जब मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझाया था। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपको पता होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मेनली यही डिफरेंस है। डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनी मेम्ब्रेन, बट ऑस्मोसिस में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वाटर के हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव होंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट ऑस्मोसिस। अभी के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना, है ना। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी देख लेते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। अभी हमने देखा ना ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए समझेंगे। नाउ वी हैव टू टेक 4 पील्ड पोटैटो, छिले हुए पोटैटो लेने हाफ करके, एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। ऐसे कटोरी जैसा या कप जैसा बना लेना है उसको, अंदर से हॉलो करके। हाफ करेंगे पहले पोटैटो को, फिर अंदर से हॉलो करके कप्स बना लेंगे उसके। और उनमें से एक पोटैटो जो है वो बॉइल्ड होना चाहिए, ठीक है। एक बॉइल्ड लेंगे और बाकी 3 कच्चे पोटैटो लेंगे। पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर। ट्रफ मतलब बीकर जैसा या कोई भी हम बर्तन ले सकते हैं थोड़ा चौड़ा, जिसमें इनको ये जो पोटैटो कप्स हैं इनको रख देंगे चारों को। नाउ अब हमें क्या ध्यान रखना है कि कीप कप ए एम्प्टी। किसी एक कप को हम एम्प्टी रखेंगे, उसको ए लेबल कर देते हैं। दूसरे में बी में हम 1 टीस्पून शुगर डाल देंगे, सी में 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे, एंड पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो कप डी ऑल्सो। तो डी हमने कैसा ले लिया? बॉइल्ड ले लिया, जिसमें 1 चम्मच शुगर डाल दिए। कीप दीज फॉर 2 आवर्स। सारा सेटअप बना के हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। अब हम ऑब्जर्वेशन में क्या देखते हैं वो ध्यान देना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ बी एंड सी। ये जो बी और सी कप है इसमें हम देखेंगे आफ्टर 2 आवर्स कि इसमें वाटर कलेक्ट हो गया है। तो वाटर कलेक्ट क्यों हो गया? एक में हमने क्या डाला था? बी में शुगर एंड इन अनदर सॉल्ट। अब शुगर और सॉल्ट ये कप्स हमने कहाँ रखे हुए? पोटैटो कप्स वाटर में, ठीक है। इनको हमने पहले ही बताया हुआ है, वी हैव टू कीप देम इन द वाटर। अब देखो वाटर का कंसंट्रेशन ट्रफ में ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड ये बी और सी जो कप है, ठीक है। बी और सी में हमने सॉल्ट और शुगर डाल रखा है और बाहर आसपास क्या है? पानी। तो अंदर पानी बहुत कम है या है ही नहीं, तो वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मतलब वाटर विल एंटर फ्रॉम द ट्रफ इनटू दीज कप्स। तो हम क्या देखेंगे? द वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शंस ऑफ पोटैटोज बी एंड सी, ठीक है। दोनों में वाटर आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स inside the potato is lower than the outside the potatoes ना।
Then these potatoes have concentrated solution sugar and salt while they are kept in plain water. तो वो बाहर वाला जो पानी वाला जो environment है वो hypotonic कहलाएगा. As a result, water moves inside the potato cups by end osmosis. Osmosis अंदर की तरफ हुआ है तो end osmosis and gets collected. तो clear है ये? Why is potato A necessary for this experiment? तो अब देखो potato A में हमने कुछ भी नहीं रखा है, empty है, means जो अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो क्या होगा, नो मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस. तो पोटैटो ए कप ए इज नेसेसरी बिकॉज इट एक्ट एज ए कंट्रोल फॉर प्रोवाइडिंग कंपैरिजन. कंपेयर करने के लिए रखा है हमने, तो उसमें तो वाटर जाएगा ही नहीं क्योंकि कंसंट्रेशन इज सेम ऑन बोथ साइड्स एंड देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन हॉलोड आउट पोर्शंस ऑफ ए एंड डी. तो ए का तो हमने देख लिया, ए में क्यों नहीं गया, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है, एक जैसा कंसंट्रेशन है. तो वाटर डज नॉट गैदर्ड इन ए एंड एज इट डज नॉट कंटेन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, अंदर शुगर या सॉल्ट कुछ नहीं है. सो देयर इज नो कंसंट्रेशन डिफरेंस. और डी में क्यों नहीं हुआ, डी में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पोटैटो हमने कैसा लिया है, बॉइल्ड पोटैटो लिया है, तो वो उसके सेल सब डाई हो चुके हैं बॉइल्ड पोटैटो में, और उनकी जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है यानी सेल मेम्ब्रेन है वो वर्क नहीं करेगी, तो ऑस्मोसिस नहीं होगा. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन. इसको रीड करना फिर से अच्छी तरह से. नाउ विल डिस्कस सम इन टेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज टू एंटर और एग्जिट ओनली सम ऑफ द मटीरियल. कुछ मटीरियल को ही अंदर बाहर जाने देता है. तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ, मतलब अंदर और बाहर ओनली सम ऑफ द सब्सटेंसेज आर अलाउड टू एंटर और एग्जिट. लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग. तो मैंने जब आपको लाइसोसोम समझाया था तब बताया भी था. Let's revise it again. Lysosomes are known as suicidal bags because during cell starvation, अगर सेल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, it is not able to survive, कुछ उसको खाने को नहीं मिल रहा है और इंजरी हो जाती है, the digestive enzymes present in the lysosomes क्या करते हैं, ये स्पिल ओवर हो जाते हैं, पूरे सेल में बिखर जाते हैं, मतलब जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो जाता है एंड डाइजेस्ट द सेल ऑर्गेनेलीज एंड दस डिस्ट्रॉय द सेल इटसेल्फ. तो पूरे सेल को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए उसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट, हमने सारी चीज़ें रिवाइज की हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली, है ना. नाउ कीप रिवाइजिंग द चैप्टर, कीप रिवाइजिंग ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है, इंटरनल क्वेश्चंस लिख लिए होंगे आपने, आप उनको भी सॉल्व कीजिए एंड जस्ट गो ऑन रिवाइजिंग. सो टेक केयर, गुड बाय.